Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to start a very new chapter. So now we are going to discuss the poem which is mentioned in your chapter number 4 from the Diary of Anne Frank, that is titled as Amanda, written by Robin Clean. So this is the poem based on the reality of life. So in this poem, Amanda is a girl, and basically every child feels that she or he is controlled and instructed by their parents or by their teachers that you should not to do these kind of things, those kind of things, or another things, right? So basically it is based on the reality of life, and Amanda always and most of the time she is lost in her own world. All right. So uh, you know कि आप लोगों को जो भी कहा जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि आपको ये काम क्यों कहा जा रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं बाय योर पेरेंट्स एंड बाय योर टीचर्स। लेट्स सी कि रॉबिन क्लीन हमें क्या बताना चाह रहे हैं थ्रू हिज पोइट्री, दैट इज एमेंटा। So, Amanda, every child feels that he is controlled and instructed not to do one things or another. See, when I was a child, means when I was in teenage, I also feel like the same. कि my parents and my elders or my teachers always instructed me, always controlled me. कि Neha, please don't do this thing, and you do this thing only. So and similarly or in a similar way you also feel like that। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स या टीचर्स लाइक मी आपको कंट्रोल करते होंगे और आपको कहते होंगे कि आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना। ऑल राइट, सो यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। सो कर्टेल मीन्स रिड्यूस्ड इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, कि आपकी जो फ्रीडम है वो कट शॉर्ट की जा रही है, राइट? Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. So you what to do, you just write things कि जो आप लोग करना चाहते हैं, but आपके parents और elders आपको करने से रोकते हैं। To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. Let's start the poetry. So the first stanza, so in this poetry we will see around six or seven stanzas are there. So the first is, don't bite your nails, Amanda, don't hunch your shoulders, Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda. So in this first stanza here, the Amanda's mother said to Amanda, means instruct to Amanda कि Amanda don't bite your nails, means अपने nails को bite मत करो। Usually क्या होता है, बच्चे होते हैं जब हम छोटे थे all the time हम अपने nails को bite करते थे, तो हमारे parents suggest करते थे कि it's not a good thing and these kind of thing आप लोग सबके सामने नहीं कर सकते हो और it's not look good, as well as it's not a very good habit. So that is the main reason her mother always told Amanda कि don't bite your nails, Amanda, don't hunch your shoulders. So hunch your shoulders means don't bend your shoulders, means sometimes we just like sit like this and stand like this. So this is not a very good habit. We always sit like this postures, always like this, always just not bend the shoulders. So that is a very good habit. But Amanda तो hunch करके बैठती थी, तो उसकी मदर उसको रोकती थी। Stop that slouching and sit up straight. Slouching means होता है जब आप ऐसे bend करके बैठते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बैंड करके कैसे बैठते हैं उसे हम स्लाउचिंग कहते हैं। देखो एक तो होता है जब हम बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठते हैं, एक होता है हम कुछ इस तरीके से बेंड होके बैठते हैं, तो जो हमारा बैक पोर्शन है वो इस तरीके से बेंड होता है, इसको कहते हैं स्लाउचिंग पे। और जब हम ऐसे ही खड़े होते हैं, हम स्ट्रेट खड़े नहीं होते, तो that is why her mother said to her कि don't slouching, just sit straight. All right, Amanda. So these are some instruction by her mother, by Amanda's mother.
नाउ द सेकेंड स्टेंजा इज इन ब्रैकेट. सो ब्रैकेट में जो भी स्टेंजा होता है, ये क्या होता है, ब्रैकेट स्टेंजा कॉल्ड पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस मीन्स होता है कि ये इसमें एमेंडा अपनी वर्ल्ड में होती है, राइट. ही शी इज लॉस्ट इन हर ओन दुनिया, ओन वर्ल्ड. सो देयर इज अ लैंग्वेज. सो सी द रेड बॉक्स, देयर आर मीनिंग्स. लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड. सो वो क्या रहती है, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. वो रिलैक्स रहती है. सो वो बहुत रिलैक्स थी. इमराल सी. सो इमराल मीन्स अ ब्राइट ग्रीन कलर. ओके. सो जो ग्रीन कलर का सी है वो उसके बारे में सोच रही थी. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. सो वेयर द ओनली सोल मीन्स द एमेंडा. वहाँ पे एक एमेंडा, इनहैबिटेंट मतलब वहाँ की जो निवासी हो केवल एमेंडा ही हो. एमराल्ड सी में इट्स मी अ मर्मेड. सो हेयर द मर्मेड होता है अ मैथेटिकल सी क्रिएचर विद द हेड एंड, आप कह सकते हो विद द हेड एंड द ट्रंक ऑफ अ विमेन एंड टेल ऑफ द फिश, राइट. उसको मर्मेड कहते हैं. जिनका जो हेड और मतलब ऊपर से यहाँ तक का जो सरफेस होता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल गर्लिश होता है, बट जो नीचे का पोर्शन होता है, जो पैर होते हैं, वो एक फिश के शेप में होते हैं, राइट. सो वो मर्मेड होती. तो कह रही थी कि आई वॉन्ट कि मैं मर्मेड होती और मैं एक एमराल्ड सी में होती, सोल इनहैबिटेंट होती, नो वन इज देयर विथ मी, एंड ड्रिफ्टिंग ब्लाइसफुली. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, और हमेशा स्लोली मूव करती अहेड. एंड ब्लाइसफुली मीन्स हैप्पीली, हमेशा बहुत हैप्पीली मूव करती. तो दिस इज द सम लाइन जो एमेंडा सोचती थी, जो एमेंडा अपने वर्ल्ड में सोचती, बिकॉज उसकी मदर उसको बोलती रहती थी, बट वो अपने ही वर्ल्ड में होती थी और इस तरह की चीज़ें वो सोचती थी. Did you finish again? Here are some her mother lines. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? So her mother said कि क्या तुमने अपना homework finish किया, Amanda? Did you clean your room, Amanda? I thought I told you. I here refer to Amanda's mother. All right. So I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So she said कि मैंने सोचती थी कि तुमको मैंने कहा था कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लेना, क्या तुमने किए? तो these are some things जो एमेंडा की मदर ने उनसे कहा था कि तुम्हें ये सब करना है. मीन्स फिनिश योर होमवर्क, देन क्लीन योर रूम, देन क्लीन योर शूज़. So these three things she supposed to done by Amanda. और शी आस्क्ड एमेंडा कि तुमने करा है या नहीं करा है. बट एमेंडा अगेन, एमेंडा शी मीन्स लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, राइट. सो नाउ आई एम ऑर्फन. सो ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड. जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें ऑर्फन कहा जाता है, जिन्हें हम अनाथ कहते हैं. ऑल राइट. So now she thought कि if I were an orphan, मैं अगर orphan होती तो roaming the street. Roaming means just wandering here and there, इधर उधर घूमती गलियों में. I pattern soft dust with my hush. Hush means very quiet and still. So वो कहती कि मैं barefoot, मतलब जो मेरे barefoot होते हैं जिनमें मैंने स्लीपर्स नहीं पहना तो उससे मैंने डस्ट पे क्या बनाती, कुछ पैटर्न्स बनाती. मिट्टी पे जैसे हम पैर रखते हैं तो कुछ पैरों के निशान बन जाते हैं, बोलती मैं कुछ पैटर्न्स बनाती. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. सो शी सेड कि जो साइलेंस है वो बहुत गोल्डन होता है और जो फ्रीडम होती है वो बहुत स्वीट होती है. देन अगेन हर मदर्स लाइन, मीन्स एमेंडाज मदर लाइन. डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा. सो शी सेड कि एमेंडा वो चॉकलेट्स आपको नहीं खानी है. रिमेंबर योर एक्ने. एक्ने मीन्स योर पिम्पल. सो शी सेड कि देखो तुम हमको अपने पिम्पल्स याद है ना. इफ़ यू ईट मोर चॉकलेट्स, इफ़ यू ईट लॉट ऑफ चॉकलेट, देन योर एक्ने इट्स कमिंग बैक. तुम्हारे एक्ने क्या हो जाएंगे, वापस आएंगे. सो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, एमेंडा. सो सी दीज लाइन्स आर वेरी फेमस लाइन्स. I tell you कि always your teachers and your mother, father, elders say whenever they talk to you, right, or trying to talk to you. So अगर आप उनकी तरफ नहीं देख रहे तो they just like scold on you कि look at me while I am speaking, you just look at me, right. So वो कह रहे जब मैं तुम्हें बात कर रही हूँ तो तुम मुझे देखो. So एमेंडा की मदर भी यही उनसे कह रही है. Now, again Amanda in her own world. Okay, so see,
I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So she said कि now I'll tell you who is Rapunzel here. ठीक है कि Rapunzel बेसिकली है, Rapunzel इज अ कैरेक्टर फॉर्म ऑफ फेरी टेल, एक फेरी टेल का कैरेक्टर है Rapunzel. सो वो क्या होता है, Rapunzel एक गर्ल होती है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी लिव्स इन अ टावर. एक ऐसा सा टावर होता है, ठीक है, कुछ इस शेप में बना होता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो वो हमेशा इस टावर में रहती है, आपको दिख जाएंगी वो इस स्टार में. एक मूवी भी है बेस्ड. अब वो क्या कहती है, शी हैज़ अ वेरी लॉन्ग हेयर. सो वो अपने पूरे बालों को अगर यहाँ तक नीचे तक ले आती तो थ्रू हर हेयर ना कोई भी उनके बालों पे चढ़कर उनके टार तक, ये जो होम सा बना हुआ है उनके टार तक घुस जाते हैं. एक बार एक विच भी चली गई थी और एक प्रिंस भी उनके टार में चला गया था. ऑलराइट, तो ये तो एक Rapunzel की स्टोरी है. सो नाउ शी थॉट कि काश आई विश कि मैं क्या होती, एक Rapunzel होती. आई हैवेंट केयर टू एनी बडी, बिकॉज लाइक Rapunzel में किसी की परवाह नहीं करती थी. जो सोचती थी कि Rapunzel की तरह ही मैं भी किसी की क्या ना करूँगी, परवाह नहीं करूँगी. एंड लिव इन अ टार इज ट्रैंक्विल मीन्स काम, बहुत शांति से मैं टार में रहूँगी. रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. तो कह रही है कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, बिकॉज अगर मैं नीचे अपने बालों को कर दूंगी तो कोई भी उनके थ्रू मेरे टार में आ जाएगा. तो आई डोंट वांट दिस थिंग, उसे वो ये चीज़ नहीं चाहिए थी. सो वो बोली कि नहीं, मुझे ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, बस ये चीज़ मैं Rapunzel की तरह नहीं करूँगी, अदरवाइज मैं जो भी Rapunzel करती मैं वही करूँगी. स्टॉप दैट, अगेन हर मदर्स लाइन, स्टॉप दैट सल्किंग. सल्किंग मीन्स होता है बी इन अ वेरी बैड मूड, ठीक है, एट वंस एमेंडा. सो वो कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ एमेंडा, आई एम नॉट अ वेरी गुड मूड, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा. सो हर मदर सेड कि एमेंडा तुम हमेशा बहुत मूडी हो, तुम बात नहीं सुनती हो. एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू. नेग्ड एट यू मीन्स टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर और आस्क him or her to do something many times. आप कहते हैं ना कई बार कि all the time आपके मदर फादर कहते हैं कि ये मत करो वो करो, और वो कह रही है कि मैं हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, ठीक है, और स्कॉल्ड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो, कि अगर नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम पर चिल्ला रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ. राइट. सो बट सीरियसली उनकी मदर वो कर ही रही थी कि उन पर स्कॉल्ड हो ही रही थी, बट शी सेड कि नहीं नहीं, कोई और सोचेगा कि मैं तुम्हारे पे नेग कर रही हूँ. Alright, so this is the poetry. I hope you all loved it. I hope you all understand it. Let's see the summary of this poetry quickly. Summary of the poem Amanda. So poem Amanda by Robin Klein depicts a child's feeling about the restrictions his parents put on him or her. So basically स्टोरी में क्या है, रॉबिन क्लिन क्या डिस्क्राइब करना चाहता है कि एक चाइल्ड की फीलिंग कि वो कैसे रिस्ट्रिक्ट होते हैं by their parents. Right, children feel their parents don't let them do many things they want to do. So always the children thinks कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं but उनके parents उनको करने नहीं देते हैं. So basically in the poem there is a girl named Amanda. So in this poem the Amanda is the main character who feels her mom nags her too much. Means she thought कि उसकी mother always called on him, always called on her, always instruct her. So the mother scolds Amanda for biting. So there are so many things जो उसकी mother उसको scold करती, like for biting her nails, haunching her shoulders and not sitting straight. तो these are the things कि वो sit नहीं बैठती थी, haunch करती थी अपने shoulders को. So Amanda does not like it. Amanda को basically ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी. On the contrary, Amanda lives in her dream. So ये सब चीज़ें तो उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्ट करती, but on the other hand, Amanda always lives in her dreams. ड्रीमी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड में वो हमेशा रहती थी. इन हर फैंटेसी शी फील लाइक्स अ मर्मेड स्विमिंग फ्रीली एंड जॉयसली इन द लाइट ऑफ ग्रीन सी. तो क्या करती थी, फैंटेसी अपने ड्रीम वर्ल्ड में वो खोई रहती थी और वो कहती थी कि मैं एक मर्मेड हूँ और मैं बहुत स्लोली मूव स्विम कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, और कहाँ पे, एकला एक ग्रीन सी में, समुद्र में. So the mother drags Amanda out of her dream
जस्ट सडनली अमेंडा को अपने ड्रीम से उनकी मदर बाहर निकालती है, वेदर शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क और नॉट. शी अगेन आस्क्ड हर कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है नहीं. शी ऑल्सो आस्क हर वेदर शी टाइड हर रूम, मीन्स वेदर शी क्लीन्स हर रूम और नॉट. शी टेल्स हर टू क्लीन एंड पॉलिश हर shoes also. So Amanda's has other reverie. Reverie means her emotions in which she herself as an orphan roaming freely. So she thought कि वो अगर orphan होती तो freely, देखो first वो mermaid बनना चाहती थी, then वो orphan, वो चाहती थी कि मैं एक orphan होती तो मैं freely घूमती, barefoot घूमती, golden silence and nobody interrupt her that time if she is orphan. And next line में वो बोलती है कि if she अगर वो क्या होती, रोपेंजल होती तो वो एक टार में रहती और अपने लंबे बालों को कभी लेट डाउन नहीं करती और वो इंजॉय करती लाइक अ रोपेंजल. All right, so I hope you love this poetry, you enjoy this poetry. So thank you for watching this video.